Hello students, welcome in physics class. As we are discussing the force and pressure, now we are going to discuss the liquid pressure. As we know that whenever a body comes in contact with another body, it exerts a force equal to its weight and this is called thrust. जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि जैसे भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी कांटेक्ट में आती है तो वो उसके वेट के कारण जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है तो फोर्स एक्सर्ट करता है. सो नॉट मोर फोर्स एंड दैट इज कॉल्ड thrust. So thrust acting on unit area is called pressure. So pressure equal to force over area, as we know that. Similarly, a liquid contained in a vessel exerts thrust at all points below its free surface and thus exerts a liquid pressure. तो liquid किसी कंटेनर में हम कंटेन करके रखते हैं, then what will be happen? जो इसकी थ्रस्ट होती है वो ऑल द पॉइंट्स होती है बिलो इट्स फ्री सरफेस. जो इसका टॉप का सरफेस होता है उसको फ्री सरफेस बोलते हैं और बिलो इट्स in all the direction it exerts the pressure and so that is called liquid pressure. So we will perform some activity to show that how the liquid exerts pressure on the walls of the container. So pressure exerted by liquids, look at that, how they are exerting the pressure. So this is a liquid in a container and as we know that all the matter, solid, liquid, gas are made from the small type of molecules and they start exerting collision. Look at that, they are exerting collisions, that is they exert pressure on the wall of the container. So it means liquid exerted lateral pressure, that is ये साइड पे भी प्रेशर exert करेंगे कंटेनर की वॉल्स पे, लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता. दे आर ओनली एक्टिंग वर्टिकली downward, they exert pressure only in downward direction and also in downward direction. Now look at that, also collision in downward direction. Look at that. So they are exerting pressure in downward direction and on the wall of container also pressure. So that is called lateral pressure. So here there are some factors affecting liquid pressure. So first of all, pressure at a point depends on depth. Mean to say pressure at a point inside the liquid increases with the depth from the free surface of the liquid. जैसे जैसे depth increase होगा, with increase in depth pressure भी increase होगा liquid का. So look at that how it is happened. So for that we will perform an activity. So we have a container, empty container, and make 3 holes at a different level, 1 2 3, and pour some water into it, and after that look at that, the water rushes out from these 3 holes, but the hole at the depth, here the pressure of water is large, here decrease, and with increase in height pressure decreases. So hence we concluded that pressure depends on depth and it also increases with depth. जैसे जैसे हम depth में जाएंगे pressure increase होगा. Now the second is pressure of a liquid is same in all the direction at a given depth. कि depth में किसी भी given point पे जो pressure होगा in all the direction वो same होगा, ना कम ना ज़्यादा नहीं होगा at a given point at the depth. So for that we will perform another activity to show it. So again take an empty container. So look at that, 1 and 2, there are the 2 holes at the same depth and pour with water. Then after that look at that, water rushes out from these holes with the same pressure. So at a given depth, look at that, pressure is equal in all direction. So hence we concluded that at a given depth the pressure of the liquid is same in all directions. Now the third one, liquid pressure depends upon the density of the liquid. So different type of liquid we have, कईयों की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कुछ लिक्विड की डेंसिटी कम होती है. जैसे हमारे पास कैरोसिन ऑयल है उसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर. सो वी विल प्रूव दैट कि जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा. लेट परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट the liquid pressure depends upon the density of the liquid. For that we will take
two empty tubes. Look at the cylindrical tubes, they are opened at both the ends and put, look at that, tight with the balloons, and here pouring the water and here the kerosene oil. Make sure that the volume of the two liquids must be same. जितना आपने केरोसिन ऑयल लिया है बाय वॉल्यूम उतना ही वाटर होना चाहिए बाय वॉल्यूम. नाउ लुक एट दैट, ये जो बल्ज है यहाँ पे ज़्यादा है इन द केस ऑफ वाटर, बट इन द केस ऑफ केरोसिन ऑयल ये जो बल्ज बैलून की है जो उससे कम है. सो इट विल प्रूव दैट कि जो लिक्विड की डेंसिटी है उस पर भी प्रेशर डिपेंड करता है. So we concluded that liquids with a higher density exert more pressure. Now the next one, liquid exert lateral pressure on the sides of the container. As I told you before that कि जो liquid है वो container की walls पर भी pressure को exert करेगा. So that is called lateral pressure. Mean to say the sideways pressure of a liquid is called lateral pressure. So we will perform an activity to show this. For this activity we have a glass jar, a deflated balloon, water. So look at that. So this is the jar in which we will put the water. Look at that. And when after putting the water into it, now look at that, it's bubbles out. So mean to say water also liquid also exert pressure on the wall of the container. So this is called lateral pressure exerted by the liquid. Now note this point, the lateral pressure is exerted by the liquids and gases but not by solids. ये जो lateral pressure होता है वो liquid और gases produce करती हैं लेकिन solid के साथ ऐसा नहीं होता. That a liquid seeks its own level. तो इसको अंडरस्टैंड करने के वी विल परफॉर्म एन एक्टिविटी. सो लुक एट दैट, टू शो दैट अ लिक्विड सीक इट्स ऑन लेवल. इसका मतलब क्या होता है, वी हैव अ नंबर ऑफ वेसल्स एंड वाटर एंड ऑल द वेसल्स हैव अ डिफरेंट शेप, साइज, डिफरेंट एरिया. सो व्हाट वी हैव टू डू, सो टेक अ नंबर ऑफ वेसल ऑफ डिफरेंट शेप एंड कैपेसिटीज इंटरकनेक्टेड, pour water into any one of these vessels. देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व. नाउ लुक एट दैट, हमने किसी भी एक वेसल में वाटर को पोर करना है, इसमें डालना है वाटर को. देन व्हाट वी ऑब्जर्व कि हर एक वेसल में चाहे उसका शेप, साइज, एरिया डिफरेंट हो लेकिन जो लेवल है वाटर का उन सब में सेम है, एक जैसा है. सो दैट इज शो दैट लिक्विड सीक्स इट्स ऑन लेवल. सो यही रीज़न है कि जो वाटर टैंक होते हैं वो हाई लेवल पे बनाए जाते हैं कॉलोनी में. आपके मोहल्ले में घर के पास कभी वाटर टैंक देखा होगा या हमारे घर पे जो वाटर टैंक है तो वेरी हाइट पे होते हैं. तो होता क्या कि ऐसा वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द रिजर्वेयर टैंक ट्राइज टू सीक इट्स लेवल. तो बिल्डिंग्स में, डिफरेंट हाउसेस में, क्योंकि डिफरेंट हाइट पे होंगे बिल्डिंग्स में घर, तो उनमें जो पाइपिंग होगी वो डिफरेंट हाइट पे होंगी, डिफरेंट वे से की जाएंगी. लेकिन जब वाटर उनमें मूव करेगा तो वो अपने आप राइज अप करेगा एंड वो अपना जो लेवल होता है बिलो द वाटर टैंक इट विल अटेन, चाहे कैसा भी शेप हो, कैसी भी साइज हो पाइप की. सो दैट इज कॉल्ड अ लिक्विड सीक्स इट्स ऑन लेवल. सो आल्सो लिक्विड प्रेशर एट ए पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर. तो जो लिक्विड प्रेशर किसी भी पॉइंट पे वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कंटेनर की शेप और साइज कैसी है, एज वी डिड इन दिस एक्सपेरिमेंट. एंड इट इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. तो कौन से कंटेनर पे वो एक्ट करे, उसका सरफेस एरिया कितना है वो इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा. लुक एट दैट, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी कम है. लुक एट दैट, यहाँ पे भी कम. सो डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस एरिया कंटेनर का हो, डजेंट मैटर. तो प्रेशर इन चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, शेप, साइज एंड सरफेस एरिया तीनों पे डिपेंड नहीं करेगा. असल में क्या है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम इज गिवन बाय, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी भी लिक्विड कॉलम के जरिए तो वो डिपेंड किस पे करता है. उसका फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल टू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लुक एट दैट, P is pressure exerted
D is the density of a liquid, H is the height of the liquid column above that point, and G is the acceleration due to gravity at that place. Height ज़्यादा होगी तब भी प्रेशर ज़्यादा होगा. डेंसिटी एज वी डिस्कस्ड, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड तब भी प्रेशर ज़्यादा होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर ज़्यादा होगी तब भी प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी. तो ये जो लिक्विड प्रेशर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं या लिक्विड प्रेशर के ये जो रिजल्ट हैं इनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी में टेक्निक्स में यूज़ किया जाता है. फर्दर लुक एट दैट कि अगर हम सी वाटर की बात करते हैं, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो डेप्थ इंक्रीज होने के साथ एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि डेप्थ इंक्रीज होने के साथ प्रेशर भी इंक्रीज होगा. तो वाटर का प्रेशर इंक्रीज होगा इफ़ यू आर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द ओशियन. सो deep down the sea water pressure may be so high that it may crush a human being present there. अब हम सरफेस पे रहते हैं अर्थ के, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दैट इज़ प्रेशर एयर का होता है जो कम होता है. तो अगर हम डीप डाउन जाएंगे सी वाटर में तो वाटर का प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज होकर हो सकता है कि हमारी डेथ हो जाए. दैट इज़ इट मे क्रश अ ह्यूमन बींग. तो हमें क्रश कर देगा, वो इतना ज़्यादा प्रेशर होगा. तो क्या किया जाता है, जो डीप डाइवर होते हैं जो डीप सीज में मूव करते हैं तो उनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सूट होता है जो कि जो वाटर का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको मिनिमाइज करता है, इसको मेंटेन करता है. एंड सिमिलरली जो सबमरीन्स होती हैं जो नेवी की होती हैं, वो ऐसे शिप्स होते हैं जो अंडर वाटर रहते हैं. तो अंडर वाटर अगेन क्या होगा कि प्रेशर ज़्यादा होगा वाटर का, तो वो हार्ड थिक शीट से बनी होती हैं, स्टील की होती हैं, अलॉय होती हैं स्पेशल टाइप की. तो उनसे उस मटेरियल को यूज़ करने के साथ उसको बनाया जाता है ताकि जो वो एक्स्ट्रा प्रेशर को, हाई प्रेशर को अंडर सी वाटर उसको मेंटेन करे. और फिशेस की बात करें जो डीप सी में रहती हैं, तो डीप सी में अगेन प्रेशर बहुत हाई होगा, तो उनका जो उनकी बॉडी का दैट इज़ जो ब्लड प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है. हैव अ हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ऑफ सी वाटर. अगर ऐसी फिश को हम पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा कि इमीडिएटली सडनली जो डिक्रीज होगा प्रेशर का, तो क्या होगा कि जो फिश जो है वो बस्ट कर जाएगी, वो बिल्कुल फट जाएगी. सो इट इज़ ओनली ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर.